Assalamu alaikum everyone. My name is Yusuf Wasil Khan and I teach physics as well as chemistry to IGCSE and A levels. Well, I made this channel with the help of few students last year, Huzaifa, Hamad, and Suleiman. They were part of the team, and but they graduated, and I completely forgot about the channel actually. But recently, I got an email from another city, and there were students, and they were demanding for more lectures. I went back to the channel and saw many positive comments. So this kind of motivated me to make more detailed, updated videos. So I'll start with the first chapter. I'll not take much of time talking about general discussion or whatever. I'll try to make it as concrete as possible so that you can benefit, you can get the utmost benefit out of it. So, anyway, so I'll be switching since most of the comments were from Pakistan, like we were all Pakistan, sare Pakistani ही उस पे comment कर रहे थे. So I'll switch from English to Urdu time to time, whatever. तो वो हम साथ साथ करेंगे. Anyway, we'll start with the first. So these are updated lectures. I will start with the first chapter, which is of AS Physics, Physical Quantities. ये स्टार्ट कर लेते हैं 2022 के सिलेबस के मुताबिक. देयर आर फ्यू चेंजेस in the entire syllabus, so these are going to be updated lectures. Anyway, physical quantities, it's always interesting to start this chapter because students think ये बड़ा easy chapter है, but no, since we are talking about A levels, आपके पहले chapter से ही ठीक ठाक questions start हो जाते हैं. Past paper case, it's not introductory or anything. We need to understand कि physical quantities में क्या क्या है. इसमें scalar and vector is a very important part. This has to be very clear क्योंकि besides chapter 1, these topics will be utilized. These concepts are going to be tested in chapter 3, kinematics, डायनामिक्स, फोर्सेस, वर्क एनर्जी, पावर. ये सारे स्केलर एंड वेक्टर इवन A2 फिजिक्स में सारे चाहिए होते हैं. सो स्केलर एंड वेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए. एनीवे, विल स्टार्ट विद चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज़. बेसिकली क्या होता है, ठीक है. सो वेन एवर आई स्टार्ट यूजुअली इन द क्लासरूम, तो एक जो होशियार सा स्टूडेंट एक्ट करने की कोशिश करते हैं, सर क्वांटिटी दैट इज़ फिजिकल इज़ कॉल्ड, लेकिन and the class laughs and whatever. But I expect this joke every time. But no, the quantity does not have to be physical. Physical quantities are those quantities which can be measured by an instrument or calculated using a formula and should have a unit. So, physics relies on physical quantities. There are quantities which we know exist, but we are not very sure कि उसकी how can we calculate. For example, confidence level, happiness. These are all virtual quantities, aesthetic sense, and so on and so forth. वो quantities physics में discuss नहीं होती. Anyway, physical quantities, as long as you can measure, is called a physical quantity. Time is a very interesting quantity. We don't know its physical shape, where did it start from, where did it end. But since we have an instrument which can measure the value of time, its magnitude can be measured using stopwatch, and it has a unit, so it will be a physical quantity. सही है. So, physics में whenever you describe a physical quantity, you have to be very clear. Time itself is called a physical quantity. T is the symbol. 30.2 is known as the magnitude, and S is the SI unit. Sometimes student mix this with this. I usually ask symbol क्या है, वो कहते हैं सर टाइम का सिंबल सेकेंड्स है. नो, द टाइम सिंबल इज़ टी. ठीक है, तो सिंबल और SI यूनिट में फ़र्क आपको आना चाहिए. एनीवे, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करते हैं ना, ये आप लोगों ने पहले भी ओ लेवल्स वगैरह में पढ़ा होगा कि दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़. बेस क्वांटिटीज़ वर बेसिकली डिसाइडेड अमंग साइंटिस्ट के हमने
सेवन क्वांटिटीज़ जो हैं दे हैव डिसाइडेड कि दे कैन नॉट बी फर्दर डिफाइंड या फर्दर सिंप्लीफाइड। माई लेंथ इज़ अ वेरी फंडामेंटल क्वांटिटी। मैं ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ डिवाइड हो जाएगा सो इट विल बी लेंथ। नो, लेंथ इज़ अ वेरी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसको इन्होंने बेस क्वांटिटी का है। सो यू नीड टू मेमोराइज द लिस्ट ऑफ ऑल दी सेवन बेस क्वांटिटीज़। रीज़न मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। इसमें जो फर्स्ट फाइव हैं दे आर कॉमनली यूज्ड इन ए एस फिज़िक्स। A2 में फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज़ होगा। अदर देन दैट लाइट इंटेंसिटी इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ए लेवल्स। तो ये आपको लिस्ट याद होनी चाहिए। Any other quantity that is being discussed in physics will come under derived quantity, जिसमें आपके पास यू नेम एनी क्वांटिटी, वर्क डन है, वेलोसिटी है, पावर, फोर्स, चार्ज, प्रेशर, और भी इसके अलावा जितने भी क्वांटिटीज़ फिज़िक्स में आते हैं दे आर ऑल डिराइव क्वांटिटीज़। ठीक है, रेजिस्टेंस, वोल्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी में करंट, रिमेंबर इज़ अ बेस क्वांटिटी। अच्छा, इसको आप लोगों ने मिक्स नहीं करना। But other than that, they're all derived quantities and so on. We cannot write the entire list. वो सारे जो है ना डिराइव में आते हैं। सो आपका पहला क्वेश्चन ए लेवल्स में जो डिज़ाइन होता है, यूजुअली व्हेन यू ओपन योर एमसीक्यूज़ का पेपर 40 जो एमसीक्यूज़ होते हैं उसमें यूजुअली फर्स्ट क्वेश्चन इज़ आइदर अबाउट एस्टिमेशन, वो भी इसी चैप्टर में आता है, या वो स्केलर वेक्टर वो भी इसी चैप्टर में है, या वो फिर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बेसिस पर आता है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि यू नीड टू कन्वर्ट, अब न्यूटन इज़ अ डिराइव क्वांटिटी, इनटू बेस क्वांटिटी। ठीक है, या बेस यूनिट में यू नीड टू कन्वर्ट डिराइव यूनिट इनटू बेस यूनिट। ये आपका पहला क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि न्यूटन इज़ अ डिराइव यूनिट और आइडिया ये है कि इसको एक्सप्रेस करें, इसको कन्वर्ट करें इनटू एसआई बेस यूनिट्स। तो इसका अपना मेथड होता है। सबसे पहले इफ़ दे गिव यू अ डिराइव यूनिट लाइक न्यूटन, यू हैव टू कम अप विद अ फार्मूला विच गिव्स अस द आंसर इन न्यूटन्स। ठीक है, तो सब पहला स्टेप ये है, सेलेक्ट अ फार्मूला। जिस तरह फोर्स, न्यूटन इज़ अ यूनिट ऑफ फोर्स, एंड फोर्स का तो बच्चे बच्चे को पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए, तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होता है रख के। सो यू सेलेक्ट अ फार्मूला एंड देन यू पुट यूनिट्स। You keep on putting units until you get all of them as SI base units। वो जो 7 units की हमने बात की थी वो जब तक ना आए, you have to keep on putting the units। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आइडिया क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन है, सो वी ऑल नो न्यूटन इज एफ इज इक्वल टू एम ए, एम इज़ किलोग्राम्स, एक्सीलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो अगर आप देखें मैंने सिर्फ यूनिट्स पुट किए हैं। ठीक है, इसमें किलोग्राम जो है, किलोग्राम is a base unit। ठीक है, meters is a base unit, second is a base unit, I cannot further simplify। so न्यूटन कह सकते हैं कि न्यूटन इज़ एक्चुअली इक्वल टू के जी एम एस माइनस टू। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं पे फिज़िक्स में लिख लें, एक स्टूडेंट 7 न्यूटन लिखता है और एक स्टूडेंट लिख लेता है, ज़्यादा होशियार बनता है, के जी एम एस माइनस टू, तो एग्जामिनर कैन नॉट डिडक्ट मार्क्स क्योंकि न्यूटन इज़ के जी एम एस माइनस टू। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली वी डोंट राइट दिस बिसाइड, मतलब एक्सेप्ट फॉर दिस चैप्टर वी डोंट राइट दिस, हम तो न्यूटन ही लिखते हैं। अगर वो कहे कि न्यूटन को कन्वर्ट करें कि न्यूटन इक्विवेलेंट की न्यूटन की इक्विवेलेंट जो है वो बेस यूनिट क्या है, बेस यूनिट्स क्या है, तो के जी एम एस माइनस टू। ठीक है, रीज़न हम डिस्कस, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड इट। अगर आप जनरली जानना चाहते हैं कि मतलब व्हाई डू वी हैव टू डू इट, तो इसके पीछे रीज़न है, विल डिस्कस इन अ वाइल। एनीवे, जूल्स इज़ अनदर यूनिट, और जूल का अगर आप देख लें, जूल आपके पास इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी का हमें पता है कि एनर्जी या वर्क डन जो है, दैट इज़ हाउ यू डिफ़ाइन एनर्जी कि इट इज़ डिफाइंड, या वर्क डन की अगर हम बात करें, या जूल अगर हमें पता हो कि इट्स अ यूनिट ऑफ वर्क डन या एनर्जी, तो वर्क डन बेसिकली हमारे पास बाय डेफिनेशन इट्स एफ इंटू डी। सो फोर्स इज़ न्यूटन एंड डिस्टेंस इज़ मीटर। मैं सिर्फ यूनिट्स पुट कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट सॉल्विंग एनीथिंग, आई एम जस्ट पुटिंग द यूनिट्स। न्यूटन देखिए मैंने अभी डिराइव की है, के जी एम एस माइनस टू है, सो आई इंस्टेड ऑफ न्यूटन
I'll put kgms minus 2. अब मेरे पास दो मीटर्स हैं, यू ऑलरेडी नो मीटर इंटू मीटर विल बी मीटर स्क्वेयर. kgm square s minus 2 is the बेस यूनिट्स इक्वलेंट टू जूल. तो जूल जो होता है वो बेसिकली बेस यूनिट्स के टर्म्स में इट्स के जी एम स्क्वेयर एस माइनस टू. दे डोंट चेंज. तो अगर आपको इतनी प्रैक्टिस हो कि ये तो बहुत बेसिक यूनिट्स हैं, ये तो आपको एक तरीके से सॉरी याद होने चाहिए, ठीक है. सो एनी वे, बट यहाँ पे मैंने कहा ना कि जूल वर्क डन के साथ भी लिंक हो सकते हैं, और मैंने दूसरा वर्ड यूज़ किया एनर्जी. अगर एक स्टूडेंट कहता है नहीं आई वांट टू गो फॉर एनर्जी का कोई फार्मूला, बिल्कुल यू कैन गो फॉर एनर्जी. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जूल, मुझे आंसर काइनेटिक एनर्जी का भी जूल्स में आता है, एंड आई वांट टू पुट टेस्ट दिस यूनिट इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो बिल्कुल आप हाफ एम वी स्क्वेयर लिख लें. इसमें देखें हाफ इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, सो इट डजंट हैव अ यूनिट, सो वी कैन स्किप हाफ. ठीक है, कोफिशेंट्स को हम स्किप कर सकते हैं. यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि मैं जब कहता हूँ कोफिशेंट, स्टूडेंट समटाइम एज्यूम कि कांस्टेंट्स को हम स्किप कर सकते हैं. वेल यू कांट स्किप द कांस्टेंट. ये ना हो कि आप कहें कि के इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट, आगे डिफॉर्मेशन में आएगा, एंड यू स्किप के. नो, अगर नंबर्स हैं, कोफिशेंट्स हैं 3/2 पाई वट एवर, ये जो वैल्यूज़ होते हैं इनको आप स्किप करते हैं. बट एनी वे, coming to m, so I'll put m. मीटर पर सेकेंड इज़ वेलोसिटी, तो मैंने वेलोसिटी की जगह ये पुट कर लिया, स्क्वेयर लिया है. अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, सो व्हाट डू आई गेट, के जी एम स्क्वेयर एस माइनस टू. ठीक है, तो ये मेरे पास, अगर आप देखें एक स्टूडेंट वर्क डन के फार्मूले से टेस्ट करे या एक स्टूडेंट टेस्ट करे यूजिंग काइनेटिक एनर्जी, बोथ आर द सेम थिंग. सो दोनों से एक ही आंसर आता है. एंड इफ स्टूडेंट वांट्स टू गो फॉर सम अदर एनर्जी का फार्मूला, फॉर एग्जांपल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, gravitational potential, you try every formula, whichever formula, even work done is v into q. कोई इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. दे ऑल विल गिव यू द सेम बेस यूनिट्स. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, एक्सप्रेसिंग, अच्छा ये टॉपिक है वॉट्स इज़ अ यूनिट ऑफ पावर, एंड वी ऑलरेडी नो पावर इज़ वर्क डन बाय टाइम. बाय कोशिश करें डेफिनेशंस यूज़ करें, ठीक है. तो वर्क डन अभी हमने देखा है कि इट्स जूल और जूल पर सेकेंड. सो जूल अभी हमने डिराइव किया था, विच इज़ के जी एम स्क्वेयर एस माइनस टू डिवाइड बाय एस. सो ये एस ऊपर जाएगा. तो अच्छा, ये मिस्टेक्स बिल्कुल ना हो जो आपके बेसिक मैथ्स के इश्यूज़ हैं, तो इसको अवॉइड करें, इसकी प्रैक्टिस. एंड द ओनली वे टू अवॉइड इज़ प्रैक्टिस. वो तो मैं वैसे भी एक दफ़ा रूल बता दूंगा, लेकिन इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड इन फिज़िक्स, योर मैथ प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन आप एक दफ़ा कर लें, यू थिंक यू आर डन विद दिस पेपर, आई वुड सजेस्ट गो फॉर इट अगेन. अगर आपको एक मेथड आता भी है एक दफ़ा, खैर है, फिर भी, बिकॉज इट्स अ स्किल, स्किल नीड्स प्रैक्टिस. ये मिस्टेक ना हो कि अगर आप एस ऊपर लेकर जा रहे हैं और एस माइनस थ्री की बजाय आप उसको एस माइनस वन कर रहे हैं. दैट्स अ कॉमन मिस्टेक आई सी इन स्टूडेंट्स पेपर्स. ये मिस्टेक्स कम अज़ कम ना हो. आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस किया करें. Anyway, s goes up, it becomes minus 1, so minus 1 is minus 3. इसी तरह बाकी जो कॉमन है वो भी कर लेते हैं. I'm going through all the common units. Pascal is frequently asked. So pressure का वो जो है ना यूनिट है, and pressure is all, you all must be knowing, pressure is defined as force per unit area. फोर्स न्यूटन है, एरिया में पता है इट्स मीटर स्क्वेयर. न्यूटन की जगह के जी एम एस माइनस टू डिवाइड बाय एम स्क्वेयर, सो विल गेट के जी एम माइनस वन एस माइनस टू. तो ये हमारे पास जो है बेस यूनिट्स आ गए. ठीक है, सो एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड विद फर्दर यूनिट्स, कूलम. अच्छा, ये जो फार्मूलाज वगैरह हैं, ये वैसे भी आपकी प्रैक्टिस के साथ ये सारे मतलब फार्मूलाज आपको याद भी हो जाएंगे. कूलम इज़ अ यूनिट ऑफ चार्ज, और इलेक्ट्रिसिटी में हम ये पढ़ेंगे कि आई इज़ क्यू बाई टी, या चार्ज इज़ करंट इन टू टाइम. करंट इज़ एम्पेयर एंड टाइम इज़ सेकेंड, सो विल राइट ए एस. और ए जो है अभी स्टार्ट में मैंने बताया था कि ए इज़ बेसिकली इट्स अ बेस क्वांटिटी, सो आई कांट फर्दर सिंप्लीफाई, स्टॉप राइट हेयर. ए एस इज़ द एस आई बेस इन टर्म्स ऑफ चार्ज का जो बेस यूनिट्स हैं वो ए एस है. वोल्ट्स अनदर कॉमन.
यहाँ पे एक स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, मैंने आस्क के वोल्ट्स को डिराइव करें, दे ऑल स्टार्ट विद वी का फार्मूला। मैं उनसे कहता हूँ कि कम अप विद द फार्मूला, सो सारे के सारे स्टूडेंट्स कहते हैं वी इज इक्वल टू आई आर। वेल दैट इज़ नॉट अ प्रेफर्ड फार्मूला। कोशिश करें कि डेफिनेशन यूज़ करें। प्रॉब्लम विद वी इज इक्वल टू आई आर इज़ कि आई का तो इशू नहीं है, दिस इज़ एम्पेयर्स, रेजिस्टेंस इज ओम्स। अब रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन रेजिस्टेंस इज अगेन वी बाय आई, तो देखें वो फिर आप आगे नहीं जा पाएंगे। कोशिश करें कि डेफिनेशंस यूज़ करें। ओ लेवल्स में वोल्ट्स की डेफिनेशन या ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन जो थी वो थी कि वोल्ट्स या पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अभी हमने वर्क डन का देखा था, इट्स जूल्स विच इज़ इक्वल टू के जी एम स्क्वेयर एस माइनस टू डिवाइडेड बाय चार्ज। अभी ये जो हमने डिराइव किया है दिस इज़ ए एस, तो ए और एस ऊपर जाएंगे तो एक ए माइनस वन हो जाएगा और एस माइनस थ्री। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि आप बीच में वीडियोस पॉज कर लिया करें, ख़ुद भी एक दफ़ा साथ साथ लिखते जाएं, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। सिर्फ लिसनिंग से इट वोंट हेल्प, यू नीड टू मतलब प्रोड्यूस ऑन अ पेपर। ठीक है, सो इफ़ यू कैन जस्ट ग्रैब अ पेंसिल पेन वट एवर, इसको साथ साथ लिखा करें ताकि जहन में बैठ जाए। एनीवे अगर हम ओम्स की बात करते हैं, इट्स अ डिराइव यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें पता है कि इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, आर इज़ इक्वल टू वी ओवर आई। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी से डिनोट होता है, वोल्ट्स क्योंकि उसका यूनिट है, एंड करंट इज़ डिनोटेड बाय आई और इसका यूनिट जो है एम्पेयर्स है। सो वी ओवर एम्पेयर्स का अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, वी जस्ट सॉ कि v जो है आपके पास इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू के जी एम स्क्वेयर एस माइनस थ्री ए माइनस वन। सो विल राइट ऑल ऑफ दिस इंस्टेड ऑफ v डिवाइड बाई ए ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा। दिस इज़ द एस आई बेस यूनिट्स के टर्म्स में रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट ही आता है। ठीक है, इसमें ज़रूर कोशिश करें पेपर टू में कि डू लुक इनटू योर प्रीवियस पार्ट्स, उसमें ज़रूर हिंट्स मौजूद होते हैं, स्पेशली पेपर टू में। समटाइम्स स्टूडेंट्स ये मुझे सेंड करते हैं पार्ट थ्री, जस्ट लास्ट पार्ट सेंड करते हैं, मैं उनसे ज़रूर कहता हूँ मुझे प्रीवियस पार्ट सेंड कर दें इफ़ यू वांट मी टू आंसर, क्योंकि उसमें आपको पूरे क्वेश्चन का थीम पता चलता है कि वो कहाँ से उसने स्टार्ट किया है, कहाँ पे उसने क्या हिंट्स रखे हुए हैं। सो एनीवे ये हमारे पास जो है सिंपल एक्सप्रेस करना था। फिर इस तरह भी पॉसिबल है कि समटाइम्स दिल गिव यू अ फार्मूला जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जिस तरह ये फार्मूला जो है, दिस इज़ द फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, हायर क्लासेस में यूज़ होता है, A2 में भी ये है। और इन सब में वो आपसे कहेंगे कि कोई एक स्पेसिफिक कांस्टेंट या कोई फिज़िकल क्वांटिटी का कहेंगे इसका क्या यूनिट है। फॉर एग्जांपल इस केस में g इज़ अ कांस्टेंट एंड दे आर आस्किंग व्हाट आर द यूनिट्स, SI बेस यूनिट्स ऑफ g। तो बाकी वो आपको बता देंगे कि F फोर्स है, M कैपिटल M और स्मॉल m मैसेज हैं, और डिस्टेंस R से डिनोट हो रहा है, और आपसे कहेंगे कि G के यूनिट्स फाइंड करें। तो इसका आसान तरीका ये है कि व्हाट यू हैव टू डू इज़ आप G को सब्जेक्ट बना लें और बाकी सारे टर्म्स को ऑन द अदर साइड ऑफ इक्वल साइन लिख लें। सो इट विल बी F इंटू आर स्क्वेयर डिवाइड बाय M एंड M। सो ये आपके पास G एज अ सब्जेक्ट बन गया है। नाउ जस्ट पुट द यूनिट्स, इट्स प्रीटी सिंपल कि F की जगह आप न्यूटन पुट कर लेंगे, R की जगह यूल पुट मीटर स्क्वेयर क्योंकि वो तो डिस्टेंस है, रेडियस है, और masses की जगह किलोग्राम एंड किलोग्राम से किलोग्राम स्क्वेयर हो जाता है। और इसमें एक अभी भी हमारे पास डिराइव यूनिट है न्यूटन। सो इन द नेक्स्ट स्टेप विल पुट इंस्टेड ऑफ न्यूटन विल राइट के जी एम एस माइनस टू, ये हमने न्यूटन की जगह पुट की है। दिस m स्क्वेयर इज़ द सेम m स्क्वेयर एंड होल डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वेयर। तो व्हाट विल डू नेक्स्ट कि इसमें हम मीटर को कंबाइन कर लेते हैं, वन ऑफ द किलोग्राम विल कैंसल आउट लाइक दिस, तो के जी ऊपर जाएगा माइनस वन हो जाएगा, m और m स्क्वेयर m3 हो गए, s माइनस टू हमारे पास सेकेंड तो शुरू से उसी तरह आ रहा है। सो नाउ वी हैव फाउंड आउट कि g एज अ कांस्टेंट इट हैज़ SI बेस यूनिट ऑफ किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब s माइनस टू।
तो ये हमारे पास जो है इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे कि जिसमें आपको एक अननोन दे देंगे और आपसे कहेंगे उसके फाइंड करें, तो उसमें आप सब्जेक्ट बना के बाकी यूनिट्स पुट कर लें। अच्छा अच्छा, इसमें एक और टर्म यूज़ होता है विच इज़ कॉल्ड होमोजिनिटी। बेसिकली फिज़िक्स में ऑल ऑफ द इक्वेशंस आर होमोजीनस। होमोजीनस कहते किसे हैं? होमोजीनस इसे कहते हैं कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल ये काइनेमेटिक्स में आ जाएगा एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसमें मैं आपसे अगर पूछूं कि कितने टर्म्स हैं, यूजुअली आई गेट द आंसर कि 4 टर्म्स हैं, एस यू टी एंड ए। और कोई कहता है कि 5 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, कोई 6 कहता है या वट एवर। एक्चुअली मैथ्स जब आप पढ़ते हैं, मैथ्स ए लेवल्स में एक टॉपिक आएगा बायनॉमियल थ्योरम एट्सेट्रा, उसमें यू विल अंडरस्टैंड कि मैथ्स में टर्म जो होता है ना, टर्म, अ टर्म इज़ बेसिकली one variable or multiple variables which are separated by equal sign or plus sign और माइनस साइन। मतलब इस इक्वेशन में आपके पास देर आर 3 टर्म्स, एस यू टी एंड हाफ ए टी स्क्वेयर, 3 टर्म्स हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द होमोजिनिटी की डिस्क्रिप्शन, अगर एक इक्वेशन होमोजीनस है मतलब उसके तीनों टर्म्स के या एवरी टर्म इफ़ दे हैव द सेम यूनिट्स, अगर बेस यूनिट सेम है हर टर्म के, सो दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सेकेंड टर्म, दिस इज़ द थर्ड टर्म, अगर हर बेस यूनिट के हर टर्म के बेस यूनिट सेम है, दिस इक्वेशन इज़ होमोजेनस विच मीन्स इट्स ऑल गुड फॉर टू बी यूज्ड और टू बी टेस्टेड प्रैक्टिकली। कोई भी नया फार्मूला बनता है, लेट्स से किसी ने प्रेशर का फार्मूला डिराइव किया रो जी एच स्क्वेयर। अब देखें ये इस तरह नहीं था कि उन्होंने ये फार्मूला डिराइव किया एंड दे स्ट्रेट अवे वेंट फॉर टेस्टिंग दिस इन अ लैब। नहीं, पहले इसकी होमोजिनिटी चेक की गई। अब सिंस दिस फार्मूला इज़ रॉन्ग, तो प्रेशर ऑन द लेफ़्ट साइड, अगर मेरे पास पास्कल है और ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर और फिर के जी एम एस माइनस 2 डिवाइड बाई मीटर स्क्वेयर, तो मेरे पास लेफ़्ट साइड से आ रहा है के जी एम माइनस 1 एस माइनस 2। ठीक है, राइट साइड से अगर मैं देखूं, राइट साइड पे एक डेंसिटी है विच इज़ के जी एम माइनस 3, देन वी हैव जी विच इज़ इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ तो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, एंड देन वी हैव एच स्क्वेयर। तो अगर मैं इसका फर्दर डिराइव करूं तो मेरे पास किलोग्राम रह जाता है और m माइनस 3 प्लस m, और ये तो m इसमें कैंसिल ही हो रहा है, देखें m माइनस 3 है, फिर m1 है और ये s माइनस 2। सो यू सी द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड आर नॉट इक्वल, विच मीन्स कि दिस फार्मूला विल फेल इन द लैब, दैट इज़ फॉर श्योर। तो कहने का मकसद ये है कि होमोजिनिटी से हमें फ़ायदा ये होता है कि वंस यू एक्सप्रेस ऑल ऑफ द टर्म्स इन बेस यूनिट्स, इफ़ ईच टर्म हैज़ द सेम बेस यूनिट, इट्स गुड फॉर टेस्टिंग द फार्मूला सीम्स टू बी करेक्ट। वैसे तो वो लैब में पता चलेगा कि फार्मूला सही निकला है कि नहीं, द वेरिएबल्स हैव टू बी टेस्टेड एंड ऑल दैट। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि इट सेव्स आवर टाइम, कि अगर एक फार्मूले की होमोजिनिटी ठीक नहीं है तो उसको लैब में सेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डेफिनेटली फेल होगा। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, प्रेशर इज़ इक्वल टू रो जी एच स्क्वेयर, वो तो ऑलरेडी हमें फार्मूला पता है कि रो जी एच होता है, स्क्वेयर नहीं होता। तो लेकिन वैसे ही फर्स्ट टाइम ये बना होगा, अगर लेट से किसी ने स्क्वेयर लगाया होगा तो उसकी तो होमोजिनिटी फेल हो रही है, सो ये फार्मूला है ही गलत। तो दिस इज़ हाउ वी नो कि फ़िज़िक्स में फ्रॉम चैप्टर 1 टिल जितना अभी तक डिस्कवरी हुई है, टिल अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स वेव इक्वेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स तक, सारे इक्वेशंस होमोजीनस है। एनीवे, विल टेस्ट दिस वन फॉर होमोजिनिटी। तो S जो है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन में S इज़ डिस्प्लेसमेंट, U इज़ इनिशियल वेलोसिटी, A इज़ एक्सेलरेशन, T इज़ टाइम। तो अगर मैं देखूं तो S तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है विच हैज़ अ यूनिट ऑफ मीटर्स। तो फर्स्ट टर्म का तो मेरे पास यूनिट आ गया कि द फर्स्ट टर्म इज़ मीटर्स,
सेकेंड टर्म को अब टेस्ट करते हैं कि यू टी का कंबाइन जो है वो क्या आता है। तो u इज़ वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसल्स, तो मेरे पास जो सेकेंड टर्म है उसका भी SI बेस यूनिट मीटर्स आ रहा है। इफ़ यू गो फॉर द थर्ड टर्म हाफ ए टी स्क्वेयर, हाफ ए टी स्क्वेयर को अगर मैं देखूं, दिस इज़ द थर्ड टर्म। इसमें आप ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, गिव इट अ ट्राई योर सेल्फ। और इसमें अगर हम देख लें हाफ का, तो मैंने कहा था कि इसके तो वी डोंट कंसिडर, ए इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और फिर ये एस स्क्वेयर और s-2 कैंसल्स आउट, यू गेट मीटर्स। तो मेरे पास थर्ड टर्म का भी यूनिट जो है वो मीटर्स आ रहा है। सो इफ़ एवरी term has the same base unit, this equation is homogeneous, which means it's good to go to be tested or to be finalized theory या whatever जो भी फिज़िक्स में डिस्कवरीज होते हैं, सो दे मेक श्योर कि कोई नया फार्मूला बन जाए तो उसके सबसे पहले होमोजेनिटी चेक की जाती है। अगर इसमें इशू होता है यहाँ पे मीटर सेकंड लगा होता है या मीटर पर सेकंड, तो फार्मूला इनकरेक्ट है। ठीक है। सो एनीवे एक दो MCQ देख लेते हैं। So this is a MCQ from November 21. The mobility mu of electrons traveling through a metal conductor can be calculated using the equation. अब देखें ये equation physics में कहीं पे A levels में नहीं है, लेकिन do expect वो आपसे पूछ सकते हैं। Where E is the charge on an electron, M is the mass, average time between the collision of an electron with the atom is given इसको वैसे फिज़िक्स में टाउ कहते हैं, TAU के साथ, इट्स अ स्मॉल काइंड ऑफ अ टी। व्हाट आर द SI बेस यूनिट्स ऑफ म्यू। अगर वो म्यू का पूछ रहा है, so I'll just put the units on the right hand side and then I'll just get the value. तो अगर मैं देख लूँ कि मेरे पास E is charge Q and Q is IT, तो मैंने इसकी जगह AS लिख लिया, into time which is S divide by M which is kilograms. So इसको अगर मैं simplify करूँ, it will be AS square divide by kilogram, B is the answer. तो ये ना हो कि आप ये देख के यहीं पे आप कहें ये तो हमें किसी टीचर ने नहीं बताया, ये जो आप पढ़ाते हैं, और जो आई गेट दिस कमेंट समटाइम, सर जो आप पढ़ाते हैं वो फिर पेपर में नहीं होता। ऑब्वियसली आई डोंट टीच द क्वेश्चंस, मैं तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि इफ़ यू नो व्हाट इज़ चार्ज, इफ़ यू नो हाउ टू सिंप्लीफाई, इफ़ यू नो द रूल्स, तो पास्ट पेपर्स तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू कंफ्यूज यू। अब देखें ये इक्वेशन, अब आप कहेंगे म्यू क्या चीज़ है, देखें डू नॉट बॉदर, जो मैंने रूल्स बताए उसी को फॉलो करें, जस्ट पुट द यूनिट्स। ठीक है। एक और क्वेश्चन, हाँ ये दिस नवंबर 20 के ये एक MCQ है, दिस इज़ अ बिट ट्रिकी बट अगेन वी विल रिलाई ऑन होमोजेनिटी टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये कहता है कि द स्पीड v, ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड की बात हो रही है, ऑन अ स्ट्रेच वायर इज़ गिवन बाय द इक्वेशन v इज़ इक्वल टू t पावर p इंटू म्यू पावर q। ठीक है, कोई इक्वेशन है विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि क्या है एक्चुअली कहाँ पे यूज़ होती है, वट एवर। वेट इज़ द टेंशन इन द वायर, म्यू इज़ द मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, मास पर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मास पर यूनिट लेंथ है। व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू। देखिए वो पी एंड क्यू के वो वैल्यूज़ बता रहा है। अब हाउ वुड वी नो, इफ़ यू अंडरस्टैंड होमोजेनिटी, तो होमोजेनिटी के मुताबिक लेफ़्ट साइड अगर मीटर्स पर सेकेंड है, राइट साइड सिंप्लीफाई होने के बाद इट शुड बी मीटर्स पर सेकेंड। So we have all these different options. We'll put uh, each option one by one and see किस वाले option में अगर मैं t पावर हाफ पुट करूँ और q पावर या t पावर माइनस हाफ पुट करूँ, q पावर माइनस हाफ पुट करूँ, will the when I simplify will the right hand side be equal to left hand side or not, ये हमें देखना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ मीटर्स पर सेकेंड, राइट हैंड साइड पे हमें पता है कि देखें p उसने कहा था कि p इज़ जो सॉरी t है, t इज़ न्यूटन, तो न्यूटन जो है kgms-2 है। ठीक है, मतलब टेंशन जो है, टेंशन इज़ टाइप ऑफ फोर्स, तो टेक्निकली दिस इज़
V is equal to n power p, and mu is mass per unit length. तो mass पर यूनिट लेंथ पावर क्यू, मैंने सिर्फ उनकी डिस्क्रिप्शन के यूनिट्स पुट किए। अब P देखें, इट इज़ के जी एम एस माइनस टू। देखें न्यूटन तो आपको अब तक याद होना चाहिए। Q जो म्यू इन्होंने बताया है, म्यू इज़ मास तो किलोग्राम पर मीटर, ठीक है, और उसका पावर Q है। अब देखिए आपने क्या करना है, वन बाय वन यू हैव टू पिट यू हैव टू अब आपने ये करना है कि वन बाय वन यू हैव टू पुट ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस एंड सी कि किस में लेफ़्ट और राइट इक्वल आ रहे हैं। तो अगर आप देख लें, देखें एक बात, हम एक दो ऑप्शन सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। किलोग्राम कैंसिल आउट होना चाहिए क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एंड फॉर किलोग्राम टू बी कैंसल्ड पावर शुड हैव ऑपोजिट साइंस। तो मैं देखिए मैं ए हटा देता हूँ एंड आई शुड रिमूव डी एज वेल। ए और डी मैं हटा देता हूँ, आई एम लेफ्ट विद बी एंड सी। तो इसका आसान तरीका ये है कि अब आई कॉन्ट शॉर्ट लिस्ट, आई गो फॉर ऑप्शन बी फर्स्ट। देखिए दे शुड हैव ऑपोजिट साइन सो दैट किलोग्राम कैन कैंसल आउट। तो बी का अगर मैं पुट करूँ के जी एम एस माइनस टू होल पावर माइनस हाफ, एंड ये राइट हैंड साइड के क्यू मैंने हाफ पुट किए और बी का मैंने माइनस हाफ पुट किए, और इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ माइनस हाफ सारे टर्म्स के साथ ब्रैकेट ओपन होके लग जाएगा। सो किलोग्राम पावर माइनस हाफ, मीटर का भी माइनस हाफ, एस माइनस टू है, सो माइनस टू इंटू माइनस हाफ इज़ वन। तो ये मेरे पास एस आ गया। इसी तरह हाफ को जब मैं ओपन करूँगा आई विल गेट किलोग्राम इंटू हाफ, और मीटर माइनस वन था, तो माइनस वन इंटू हाफ इज़ माइनस हाफ वन। व्हेन आई सिंप्लीफाई आई गेट एम माइनस हाफ और एम माइनस हाफ। देखिए किलोग्राम तो कैंसिल हो रहा है। एम माइनस हाफ और एम माइनस हाफ इज़ माइनस वन, और सेकेंड आ गया। तो मेरे पास ये आ रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। मेरे पास मीटर पर सेकेंड आना चाहिए, नॉट पर मीटर सेकेंड। सो गो फॉर ऑप्शन सी, मोस्ट प्रॉब्ली यही करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज़ किलोग्राम एम एस माइनस टू, वही न्यूटन की बात हो गई, और किलोग्राम पर यूनिट लेंथ पावर माइनस हाफ। अब हाफ को मैंने सबके साथ पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। तो हाफ के जी हाफ हो गया, एम भी हाफ हो गया, एस माइनस टू इंटू हाफ इज़ माइनस वन, और माइनस हाफ जब ये वाला लग जाएगा सबके साथ, तो दिस इज़ व्हाट आई विल गेट। वन इंटू माइनस हाफ इज़ माइनस हाफ, एंड एम माइनस वन इंटू माइनस हाफ इज़ एम हाफ। ठीक है, यू कैन स्लो इट डाउन, यू कैन ट्राई इट फॉर योर सेल्फ। अगर ये मैं सॉल्व ज़रा जल्दी कर रहा हूँ, या आई एम ट्राइंग टू स्लो डाउन ओवर हेयर अ बिट, देर इज़ मोर ऑफ मैथ इन्वॉल्व। इसको ज़रा खुद से, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन, इसको खुद से पेपर पे सॉल्व कर लिया करें। एनीवे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए किलोग्राम हाफ है और किलोग्राम माइनस हाफ है, सो दे विल कैंसल आउट। एम हाफ है और एम हाफ है, हाफ प्लस हाफ इज़ वन, और एस माइनस वन। सो यू सी मेरे पास राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल। इफ़ आई यूज़, अगर ये फॉर्मूला मैं इस तरह बनाऊँ, टी पावर half and mu power minus half, this is a homogeneous equation, which means this is good for further usage, whether you want to test it or derive other formulas. So this is how they must have done in the first case. ये वैसे speed in a string, it's not covered in A levels, लेकिन ये जो है FSC में ये topic है, speed of wave in a string. It depends on two factors, tension and mass per unit length. जिस तरह अगर आपने गिटार के स्ट्रिंग्स देखे हो तो कुछ की थिकनेस ज़्यादा होती है
आई डोंट रिमेंबर द सीक्वेंस, लेकिन मेरे ख्याल से जो बॉटम मोस्ट होता है उसका थिकनेस सबसे कम होती है, उसकी म्यू की वैल्यू सबसे कम होती है मास पर यूनिट लेंथ, तभी उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है और उसमें वेव का स्पीड ज़्यादा होता है। बट एनीवे, ऐसे आउटसाइड द सिलेबस क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको रूल्स आते हैं तो यू कैन स्टिल solve these questions. So this is the maximum you need to know about physical quantities. और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रीफिक्सेस। ठीक है, इस तरह मैं ये करूँगा कि मैं एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद आई हैव द वर्कशीट ऑफ दिस, आई पोस्ट द लिंक ऑफ द स्लाइड्स एंड द वर्कशीट, ताकि आप ख़ुद भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। आई एम रिपीटिंग अगैन, जस्ट लिसनिंग टू इट वोंट हेल्प, आपने ख़ुद रिप्रोड्यूस करना है ऑन अ पेपर ताकि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट रहे। सो वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। अगर एक गो में वीडियो लेंथी लग रही है, आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दोबारा रिवाइज कर लें, एंड यू कैन स्टार्ट दिस टॉपिक लेटर ऑन। विल स्टार्ट विद प्रीफिक्सेस, which is the second topic of first chapter. Prefixes, basically these are small letters or capital letters added before a physical quantity, that's why it's called prefixes, to express very small or large values. So what you have to do is you need to memorize the list of prefixes जो syllabus में mentioned है। वैसे the list is quite long if you type in Google it up. Entire list starts from way smaller to way higher values, लेकिन हमारे पास सिंपली कुछ प्रीफिक्सेस हैं जिनके सिंबल याद होने चाहिए एंड यू नीड टू मेमोराइज इट्स वैल्यूज़। तो टेरा इज़ कैपिटल टी, गीगा, इनके वैल्यूज़ यू नीड टू मेमोराइज, किलो, डेसी, स्मॉल डी, इसके अलावा भी हैं बट दे आर नॉट रिक्वायर्ड, लाइक डेका इज़ कैपिटल डी which is deca is capital D, which is 10 power 1, centi, milli, micro, nano। ठीक है, ये आपके पास सारे these are all prefixes जो आपको याद होने चाहिए, इंक्लूडिंग pico 10 power minus 12। अब देखें इसका, when I ask how do you convert prefixes in a class, तो यूजुअली what students answer, वो कहते हैं सर जो बड़े से छोटे में जाएंगे तो डिवाइड होता है, छोटे, आई डोंट गेट दैट। देखें उस तरह ना करें, there's a very simple rule to be followed, rather I would say there are 3 rules, एंड इफ़ यू फॉलो दोज रूल्स आपको ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स भी आ जाए, यू विल बी एबल टू डू इट। तो इसका तरीका ये होता है कि रूल्स ये हैं फॉर प्रीफिक्सेस कि इफ़ यू वांट टू रिमूव अ प्रीफिक्स वट एवर द वैल्यू इज़, जस्ट मल्टीप्लाई बाय इट्स वैल्यू। ठीक है, और इसी तरह टू ऐड अ प्रीफिक्स you divide by its value. For example, there is amperes and you want to write the answer in deciamperes, तो डेसी की वैल्यू डिवाइड कर दें। और एक और ये है कि एरिया एंड वॉल्यूम में आप जो प्रीफिक्स लगा रहे हैं या हटा रहे हैं, you need to take square if it's area, जैसा 1 meter is 100 centimeter, everyone knows that, but 1 meter square is not 100 centimeter square. इसका हम अभी देखेंगे कि हाउ डू वी डील विद दैट। और अगर वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब इज़ नॉट 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए, विच विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज रूल्स वाया दीज एग्जाम्पल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कह रहा हूँ कि कन्वर्ट 0.00983 गीगा मीटर्स इंटू मीटर्स। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे ये है कि आई रियलाइज़ कि मैं गीगा मीटर इंटू मीटर जा रहा हूँ, विच मीन्स कि मेरे पास गीगा रिमूव हो रहा है। तो मैंने कहा था अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू 0.00983 इंटू 10 पावर 9, तो ये मल्टीप्लाई होके आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप आंसर लिखते हैं तो 9.8 इंटू 10 पावर 6 मीटर्स आता है। इसी तरह अगर लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि कन्वर्ट माइक्रो, अच्छा ये म्यू इज़ अ सिंबल, इसको आपने एम की तरह ही होता है लेकिन एम और यू का कुछ मिक्सचर है, दिस इज़ म्यू।
And if you want to remove mu, microgram into gram, again you just multiply by the value of prefix. तो माइक्रो की वैल्यू टेबल के मुताबिक 10⁻⁶ है। तो देखिए इट डजेंट मैटर, गीगा एक बहुत बड़ा प्रीफिक्स होता है, माइक्रो बहुत छोटा प्रीफिक्स होता है। इफ़ यू वांट टू रिमूव इट यू जस्ट मल्टीप्लाई। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मतलब आपने मल्टीप्लाई करना होता है व्हेन यू वांट टू रिमूव। इसी तरह अब यहाँ पे ये एग्जांपल जो मैं दे रहा था, एम्पेयर इंटू डेसी एम्पेयर, आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपने इसको डिवाइड मतलब ऐड कर रहे हैं, सो यू हैव टू डिवाइड द वैल्यू। अगर ग्राम्स है, ग्राम इंटू किलोग्राम, आप अगेन इट्स अ वेरी कॉमन कन्वर्जन। आप देखें, आपको पता है आप डिवाइड बाय 1000 करते हैं, असल में वो आप किलो की वैल्यू पे डिवाइड कर रहे होते हैं, तो इसलिए यू गेट 12 किलोग्राम्स। अगर हम फर्दर इसकी देखें, कन्वर्ट 12 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर, नाउ दिस इज़ अ वेरी कॉमन कन्वर्जन। आपके बेसिक ज्योमेट्री बॉक्स में जो रूलर होता है उसमें भी लिखा होता है कि 1 सेंटीमीटर इज़ 10 मिलीमीटर्स, इसका आंसर 120 आता है। बट what we'll do is we'll try to convert using these prefixes rules। तो देखिए मैं सेंटी हटा रहा हूँ और मैं मिली लगा रहा हूँ, आई एम रिमूविंग सेंटी, सो आई मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ सेंटी विच इज़ 10⁻²। इट्स नॉट जस्ट सेंटीमीटर, इट कैन बी सेंटी एम्पेयर्स वट एवर, लेकिन आप सेंटी रिमूव कर रहे हैं तो आप जो है 10⁻² मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इफ़ यू वांट टू ऐड मिली टू इट सो यू डिवाइड बाय 10⁻3। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 120 mm। सही है। सो दिस इज़ हाउ यू कन्वर्ट मे बी नैनोमीटर्स इंटू माइक्रोमीटर। ये अगर आप यूज़ कर रहे हैं, नैनो रिमूव कर रहे हैं तो आपने मल्टीप्लाई किया है, माइक्रो लगा रहे हैं तो आप टेबल से आपने उन वैल्यूज़ को याद करना है, तो डिवाइड बाय 10⁻6, तो ये डिवाइड हो के 1.2 माइक्रोमीटर्स हो जाएगा। इसी तरह इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट डेसीमीटर क्यूब इनटू सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर आपने ये देखो, ये कन्वर्जन केमिस्ट्री में यूज़ होती है मोलर गैस वॉल्यूम में, कि हमें पता है कि 24 dm³ इज़ एक्चुअली 24,000 cm³, 1 dm³ इज़ 1000, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कन्वर्जन थ्रू दीज प्रीफिक्सेस के जो हमारे पास रूल्स हैं। इसमें अगर आप एक चीज़ नोट करें, आप डेसी हटा रहे हैं, सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ डेसी, एंड सेंटी मैं लगा रहा हूँ, सो आई विल डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ सेंटी। तो बट दिस इज़ देयर इज स्टिल वन पीस मिसिंग, वो है कि दीज आर एक्चुअली वॉल्यूम्स, इसमें क्यूब इन्वॉल्व है, तो आपने क्यूब लेना होगा, पूरे इक्वेशन का नहीं लेना। रिमेंबर, आपने सिर्फ इन प्रीफिक्सेस के ऊपर क्यूब्स लगाने हैं। जो भी आप रिमूव कर रहे हैं या ऐड करें, यू नीड टू टेक क्यूब, तो आपके पास ये 24,000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आंसर आ जाता है। ठीक है। इसी तरह सो देखें, ये कॉमन कन्वर्जन थी, 24 dm³ इज़ 24,000। केमिस्ट्री में यू डोंट नीड ऑल ऑफ दिस, आपको बस याद होना चाहिए, बट फिज़िक्स में आपको रूल्स पता होने चाहिए कि किन रूल्स के मुताबिक ये आए हैं कन्वर्जन। इसी तरह यू कैन गिव दिस क्वेश्चन ट्राई योर सेल्फ कि 13,000 मिलीमीटर स्क्वेयर इंटू किलोमीटर स्क्वेयर किसके इक्वल आता है। तो इफ़ यू वांट टू रिमूव मिली, मिली हटा रहे हैं ना, अच्छा देयर इज़ अ स्मॉल प्रॉब्लम और हेयर, दोनों की सिंबल सेम है। जो पहला होता है, सिंस इट्स कॉल्ड प्रीफिक्स, ये मिली को शो कर रहा है, और ये जो सेकंड है ये मीटर्स को शो कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़े इशू आ जाता है फिज़िक्स में, बाज़ वक्त सिंबल्स मैच करते हैं। A2 में इशू ज़्यादा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और मैग्नेटिक फ्लक्स का भी एक ही सिंबल है, एंड काफ़ी जगहों पर वेवलेंथ और डिके कांस्टेंट के एक सिंबल है। वो देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट। बेसिकली फ़िज़िक्स सिर्फ इंग्लिश साइंटिस्ट नहीं थे, देयर वर जर्मन, देयर वर ऑस्ट्रियन, स्टिल देयर आर। अभी भी जो रिसेंटली नोबेल प्राइज़ मिला है, तो उसमें भी देयर वर देयर 3 साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट ऑरिजिन्स। तो उन ये सारे उसमें ही आइडिया जो है वो ये होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ वर्क और वो पैरल में काम कर रहे होते हैं, तो एक साइंटिस्ट भी लैम्डा ले लेता है, दूसरा भी लैम्डा, तो देयर इज़ अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम इन फिज़िक्स ओवर हेयर। बट अभी तो खैर दैट इशू इज़ रिजॉल्व बिकॉज दे आर वेरी वेल कनेक्टेड, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली
न्यूटन लेवल के जो फिज़िक्स थी उस वक्त दे वर ऑल वर्किंग इन आइसोलेशन, डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। बट एनीवे, मिली हम हटा रहे हैं तो 10⁻³ किलो मैं लगा रहा हूँ तो डिवाइड बाय 10⁻³ तो 3 ऊपर जाएगा। बट बिफोर दैट देर इज स्क्वेयर इन्वॉल्व, तो मुझे प्रीफिक्सेस के ऊपर स्क्वेयर लगाने चाहिए और यहाँ से फिर ये सिंप्लीफाई होकर किलोमीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, so we have this question from June 19. I've tried to pick a bit tricky MCQs. इसके अलावा बहुत सिंपल भी आते हैं। आपको 3 प्रीफिक्सेस दे देंगे और आपसे कहेंगे इसकी अरेंजमेंट फ्रॉम लीस्ट टू हाईएस्ट क्या है। ऐसे MCQs भी आएंगे सिंपल, आपसे वो प्रीफिक्स की वैल्यू पूछ लेते हैं। बट आई एम ट्राइंग अभी कि कुछ हम ट्रिकी क्वेश्चंस कर लें ताकि आगे वर्कशीट की मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस, ताकि ये पास्ट पेपर्स भी आप लोगों को क्लियर हो जाएं कि व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड एंड हाउ डू वी सॉल्व देम। वो सारा क्लियर हो जाए तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों का चैप्टर कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन आई एम रिपीटिंग दिस नॉट बाय लिसनिंग, यू नीड टू राइट अलॉन्ग विथ मी। वीडियो को पॉज करें, दोबारा देखें। आई विल शेयर द स्लाइड्स। अगर वीडियो दोबारा नहीं देखते एटलीस्ट स्लाइड्स खुद से रीड कर लें, खुद से पास्ट पेपर के क्वेश्चंस जो हैं वो ट्राई करें और फिर यू कैन कम टू द दिस वीडियो फॉर रेफरेंस एंड सो ऑन। अच्छा, सो जून 19 में ये MCQ पूछा गया। ऑस्मियम, अ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, हैज़ अ डेंसिटी ऑफ दिस मच, और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ ऑस्मियम विद डिफरेंट इन्होंने यूनिट्स बताएं। अब इसमें देखें MCQ में ये ना हो कि बस आप ऑप्शन ए देखें बस उसी को टेस्ट करने लग जाएं। पहले ज़रा शॉर्ट लिस्ट किया करें एंड दे डू गिव सच मतलब ऑप्शन जिसमें आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखें फ़िलहाल तो मैं कैंसिल आउट का तो नहीं, लेकिन आई कैन टेस्ट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना, ये माइक्रोग्राम सेंटीमीटर है, ग्राम सेंटीमीटर है, किलोग्राम सेंटीमीटर, किलोग्राम सेंटीमीटर। आई थिंक वी शुड गो फॉर ऑप्शन सी एंड डी फर्स्ट, क्योंकि इनमें यूनिट्स जो हैं वो ज़रा कॉमन है। तो एक तो मुझे न्यूमरेटर की यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं करना होगा, किलोग्राम रिमेंस किलोग्राम, लेकिन किलोग्राम पर मीटर क्यूब का असल में मतलब ये है डिवाइड बाय मीटर क्यूब। तो मुझे बेसिकली इसमें करना क्या है कि मुझे मीटर क्यूब को चेंज करना होगा इनटू सेंटीमीटर क्यूब। सो आई विल गेट द आइडिया कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। सी डी अगर रिजेक्ट हो गए, अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के बाद एटलीस्ट 2 ऑप्शन मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो एनीवे, तो इसमें बेसिकली हमें पता है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर क्यूब कितना होगा, 10⁻², विच इज़ 100 इज़ 10⁻² का क्यूब। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने मीटर क्यूब को रिमूव करने के लिए मैंने उसकी जगह 10⁻6 लगा दिया। रिमेंबर कि 1 मीटर क्यूब इज़ 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स अ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन, ठीक है। और इसके पीछे रीज़न है कि 1 मीटर इज़, देखें आप सेंटी लगा रहे हैं ना, देयर आर डिफरेंट वेज टू लुक एट इट। सो डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ सेंटी, ठीक है। तो ये 100 सेंटीमीटर आता है या 10⁻²। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको मेमोराइज ही कर लें कि 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर, तो क्यूब इज़ जस्ट टेक अ क्यूब ऑफ इट। और सिंस इट्स इन डिनोमिनेटर इसलिए मैंने नीचे लगा दिया। तो 23,000 डिवाइडेड बाय 1 मीटर क्यूब या 23,000 डिवाइड बाय 10⁻6, तो ये मेरे पास 0.023 आता है, विच रेफर्स टू ऑप्शन डी। 0.023 इज़ 2.3 इंटू 10⁻−2, तो ये मेरे पास डी का आता है, ठीक है। तो ये दिस आंसर इज़ डी। इसमें आपने सिंपल मीटर क्यूब टू किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट करना था। अच्छा, देयर इज़ अनदर ऑप्शन, वी कैन रिजेक्ट दिस वन डायरेक्टली एज वेल। रिमेंबर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी के दोनों बहुत कॉमन यूनिट्स हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। So this is always divided by 1000। कुछ कॉमन कन्वर्जन मैं चैप्टर वाइज बताता जाऊंगा।
ये मैं डेंसिटी जो फोर्सेस में है उधर मैं ये चीज़ दोबारा हाईलाइट करूँगा। लेकिन रिमेंबर कि अगर आपने कन्वर्ट करना है, क्योंकि दोनों बहुत कॉमन है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, so it's divide by 1000, and if you want to convert back you multiply by 1000. And a way to memorize this, वाटर की डेंसिटी याद रखें। वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, प्योर वाटर, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वो 1 है। तो यू कैन सी द रिलेशन, ये इसको वाटर के साथ मेमोराइज कर लें। तो देखें, अगर मैं इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना चाहता हूँ, सो आई जस्ट डिवाइड बाय 1000, तो दिस विल गिव मी 23, और यहाँ पे तो इन्होंने कुछ चेंज ही नहीं किया, तो बी इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, सो अगेन मेरे पास हर तरह से डी ही आंसर आता है। बाकी इससे रिलेटेड हम पास पेपर क्वेश्चंस कर लेंगे, तो उससे भी हमें क्लियर हो जाएगा।